Hello everyone, how are you all doing? I hope you must be doing fine. Today in this video, we are going to learn about interrogative sentences in active and passive voice. Till now, we have seen positive and negative sentences in active and passive voice. Today, we'll see about one more topic, that is interrogative sentences. So we all know what are interrogative sentences, right? The sentences that starts with WH question word or the sentences that start with modal verbs, right? Here also in active and passive, there are two types of interrogative sentences. That is the sentences that begin with auxiliary verbs, that are modal verbs, or the question word beginning. Okay. First we'll see about auxiliary beginning. अब ऑक्सिलियरी क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है राइट जैसे कि डू डस डिड इज एम आर वॉज वर ओके दीज आर ऑल ऑक्सिलियरी बिगिनिंग वर्ड्स okay so the sentence structure for auxiliary beginning will be like this: auxiliary verb, subject, verb and object. ठीक है whereas in passive voice we'll use the auxiliary verb. Okay, object it will come at the first and the third form of verb, that is past participle form, then preposition by and subject goes in the end. Okay, in interrogative sentences we interchange the position of auxiliary verb and subject, right? So here also we will do the same. Now let us look at the example. Do the children play football? क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? ठीक है, तो we have to change the auxiliary verb as per the rules of active and passive. So if the beginning is from do or does, we have to change it to is, am, are. ठीक है, depending on the subject or of the object that follows. Okay, football is object over here, right? So depending on the object that comes, we have to change the auxiliary verb. Okay, so football is singular, so we will use is as it is in present tense, right? So is football played by the children? ठीक है, प्ले है उसका हमने V3 फॉर्म ले लिया. ठीक है, प्लेड फिर preposition by लिया और ये जो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन वो हमने यहाँ पे लास्ट में ले लिया. ओके, सो व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस सेंटेंस? Is football played by the children? Okay. Now we will see the structure for question word beginning. Now we all know question words, the words that start with WH words like what, where, when, how or who, right? So the structure will remain the same just as in auxiliary verb. The only thing that will change is that first we'll start with the question word and all the remaining structure is same. Okay, after question word we will use auxiliary verb, then we'll bring object in the front and be. Okay, when we are using question words we will introduce the another word that is be, then past participle form of verb, preposition by, and at the end we will take the subject. Okay, we'll see one example. When will you return the book? कि आप किताब कब लौटाएंगे? ओके, when will you. ठीक है, तो when क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, will हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब, you हो गया सब्जेक्ट, रिटर्न हो गया वर्ब और द बुक हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो when will है तो वो तो हमें वैसा का वैसा ही यहाँ पे लेकर आना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड एंड ऑक्सिलियरी वर्ब है. फिर हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे द बुक. ठीक है, फिर हम बी इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म हो गया रिटर्न, preposition by and subject that is you. ठीक है, so
we will introduce the verb be with the question word sentences. So what will be the passive voice? When will the book be returned by you? ठीक है? So there are two types of interrogative sentences. One that starts with auxiliary word and another that starts with the question word. Okay, so now we will see some rules to change interrogative active into interrogative passive. ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डस या डिड से स्टार्ट होता है तो हम उसको चेंज कर देंगे इज एम आर वॉस एंड वर से अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया वो। ठीक है, कि अगर स्टेटमेंट डू डज और डिड से स्टार्ट होता है तो डिपेंडिंग ऑन द subject that follows we will use is am are, or if the statement is in past tense we will use was or were. ठीक है, see we will see one more example. Okay, so this is the structure for simple present. do or does है तो उसको हम is am are में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले लेंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे बाय सब्जेक्ट करके। ओके, एंड यू नो दैट दिस बाय थिंग इज ऑप्शनल, यू कैन स्किप दिस स्टेटमेंट। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, सो वी विल सी सम एग्जांपल्स। डज सिमरन लर्न इंग्लिश? क्या सिमरन अंग्रेजी सीखती है? ठीक है, तो डज है तो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? इंग्लिश आ रहा है, तो इंग्लिश आ रहा है तो वो सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट में है तो सिंगुलर और प्रेजेंट में हम इज यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, लर्न का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लर्न्ड, और बाय सब्जेक्ट दैट इज बाय सिमरन। ठीक है, तो क्या हो गया स्टेटमेंट? इज इंग्लिश लर्न बाय सिमरन? क्या अंग्रेजी सिमरन द्वारा सीखी जाती है? ओके, विल सी वन मोर एग्जांपल। डज शी कुक द फूड? क्या वह खाना बनाती है? तो डज क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, राइट? तो हम उसको कैसे बनाएंगे? ई से स्टार्ट करेंगे, सिंगुलर है तो। ओके, और कुक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। ओके, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इज द फूड कुक्ड बाय हर? अब हर क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे शी है। ठीक है, हम प्रोनाउंस भी चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में, तो हमने शी का प्रोनाउन चेंज कर दिया हर में। ओके, वन मोर एग्जांपल। डज शुभम राइट होमवर्क? ठीक है, तो होमवर्क क्या है? सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में है, तो हम वापस से इज यूज करेंगे। ठीक है, और राइट का रिटर्न कर देंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? इज होमवर्क रिटर्न बाय शुभम? ओके, दिस इज द way that we convert simple present tense sentences into passive voice, interrogative sentences into passive voice. Now we'll see about the simple past. Okay, if the statement is in simple past, it will start with the auxiliary verb did. Okay, and we have to change it accordingly, was or were, depending on the singular or plural. ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे, और बाय सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, डिड सिमरन लर्न इंग्लिश? ओके, तो डिड है और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको आगे लेके आएंगे तो हम वॉस का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, और बाकी तो हम जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे ही चेंज होगा। ठीक है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो बाय सिमरन। वॉज इंग्लिश लर्नड बाय सिमरन? राइट? डिड शी कुक द फूड? ठीक है, तो द फूड भी सिंगुलर है, तो वॉज द फूड कुक्ड बाय हर?
राइट। नेक्स्ट इज डिड शुभम रीड होमवर्क, तो होमवर्क भी सिंगुलर है, हम वॉस लेंगे, तो वॉस होमवर्क रिटन बाय शुभम। Okay, this is the way we convert simple past sentences into interrogative passive voice. Now, what is the second rule? Second rule says if the interrogative sentence is starting from is, am, are, was or were, then we should use being after the subject. Okay, in the starting of the sentences. ठीक है, तो हम बीइंग किस में यूज करते हैं, हमने आगे जो भी पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जब कंटिन्यूअस वाले स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें हम बीइंग लगाते हैं, जैसे कि आईएनजी वाले जो स्टेटमेंट्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे भी वही रूल है कि अगर आईएनजी वाला स्टेटमेंट आता है और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इसमें से किसी भी एक ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें वहां पे बीइंग यूज करना है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगर इजएमआर से स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये इसका है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इजएमआर जो है वो का वो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, फिर हम ऐड करेंगे बीइंग, ठीक है, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम वही सेम एग्जाम्पल ट्राई करते हैं कि वो कैसे चेंज होगा। इज सिमरन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो इज का हम इजी रखेंगे, सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय सिमरन, ओके। सो कि लर्निंग आईएनजी फॉर्म है तो हमने यहाँ पे बीइंग लिया और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर दिया, ओके। नेक्स्ट, इज शी कुकिंग द फूड, तो इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है तो हमने बीइंग यूज किया, और इजएमआर से जो स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको इजएमआर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, इज शुभम राइटिंग होमवर्क, तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज होमवर्क बीइंग रिटन बाय शुभम, ठीक है, यहाँ पे बीइंग रिटन कर रहे हैं हम लोग, ओके। सिमिलरली जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ओके, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है, बी ई आई एन जी, ओके। It skipped over here by mistake, so I'm adding it over here, okay. So the structure for active voice will be starting with was or verb, okay, and verb का ing form हो जाएगा यहाँ पे, right, verb plus ing and object. So how will it change into passive voice, it will change it into was were, it will start with the same auxiliary verb, then we'll bring object in the front, then we will add being, then verb का past participle form plus by plus subject, ठीक है। तो we'll see the examples. Was Simran learning English, तो was English being learned by Simran, ठीक है। ये सारे सेम ही एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने ताकि आप सबको समझ में आए कि एक ही स्टेटमेंट हम अलग अलग टेंस के हिसाब से उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये पास्ट वाले सेंटेंसेस हैं, पास्ट कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म है तो हमें यहाँ पे बीइंग लगाना है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करना है जैसे हम सारे सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वॉज शी कुकिंग द फूड, तो वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम आगे लेकर आए, आईएनजी फॉर्म है तो हमने बीइंग लगा दिया
और कुक का हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले लिया कुक्ड एंड बाय सब्जेक्ट बाय हर क्योंकि यहाँ पे शी है। ठीक है। नेक्स्ट, वॉज शुभम राइटिंग होमवर्क? तो वॉज होमवर्क बीइंग रिटर्न बाय शुभम? ओके, तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको अच्छे से चेक करना so that you can get to know the difference between different kind of sentences. Now, what does the third rule says? That if the interrogative sentence starts from has, have or had, ठीक है, then we have to use been after the subject. ओके, तो हैज हैव हैड कब आता है? परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ओके, तो व्हेन वी चेंज इट वी यूज बीन ओवर देयर, okay, in perfect sentences. So similarly here also we will do the same. For perfect sentences we will use been. Okay, so for example, if it is starting from has or have when we are talking about present perfect, ठीक है, तो when it is has or have, subject and V3 and object, we know that perfect tense में जो active voice होगा उसका भी जो verb होगा वो already past participle form में ही होगा। ठीक है, so the only thing that we need to change here is that we have to bring object in front and then we have to add been and take subject at the end. Okay, there is no need to change the verb form as it is already in the V3 form. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। हैज सिमरन लर्नड इंग्लिश? तो हैज इंग्लिश बीन लर्नड बाय सिमरन? ठीक है, नोटिस किया आपने, हैज लिखा हमने, ऑब्जेक्ट आगे लेकर आए, फिर हमने बीन ऐड किया और यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, हैज शी कुक्ड द फूड? तो हैज द फूड बीन कुक्ड बाय हर? ठीक है, ये भी हमने वही किया, हैज रखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आए, परफेक्ट टेंस है तो हमने बीन ऐड किया और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय शी का हो गया हर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैज शुभम रिटर्न होमवर्क? तो हैज होमवर्क बीन रिटर्न बाय शुभम? ओके, हैज होमवर्क बीन रिटर्न बाय शुभम? ठीक है, तो दिस वे वी चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट sentences that is starting from has or have. Okay, now we will see about past perfect. Okay, past perfect में क्या यूज करते हैं? हम सिर्फ had यूज करते हैं। ठीक है, फिर subject, V3 form और object। तो हम क्या करेंगे, had का had रखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आगे लेकर आएंगे, बीन ऐड करेंगे क्योंकि परफेक्ट फॉर्म है। ठीक है, देन वर्ब एंड देन वी विल टेक सब्जेक्ट एट द एंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हैड ही फिनिश्ड द वर्क? ठीक है, तो हैड हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब तो हमने वो ले लिया आगे, ये है ऑब्जेक्ट तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ लेकर आए द वर्क, और परफेक्ट टेंस है तो हम बीन ऐड कर रहे हैं। ओके, एंड फिनिश्ड का हम फिनिश्ड रख रहे हैं एज बोथ वी आर टेकिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय सब्जेक्ट। अब ही का प्रोनाउन चेंज करेंगे तो वो हिम हो जाएगा, राइट, इसीलिए हमने ही का यहाँ पे हिम रख दिया। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा पैसिव में, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड सचिन प्लेड क्रिकेट? तो कैसे चेंज होगा, क्रिकेट आगे आ जाएगा, बीन ऐड कर देंगे, देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट गोस एट द एंड। तो हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय सचिन? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी चेंज द past perfect and present perfect sentences. Okay, so in continuous tense, that is ing form of verb,
we use being, B-E-I-N-G, being. And for perfect tense sentences that have, has, have or had, we use their being. Okay, if you remember this rule, then you can get wrong at no point. Okay. Next, what does the fourth rule say? That if the interrogative sentence starts from the modal verbs, okay, such as will, shall, can, should, if the interrogative sentence starts with such words, then we have to use be after the new subject. ठीक है, तो जो हम ऑब्जेक्ट आगे लेके आ रहे हैं वो नया सब्जेक्ट बन रहा है, तो हमें उस मॉडल वर्ब्स के बाद सब्जेक्ट लेना है और फिर हमें बी ऐड करना है. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लें हम लोग. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉडल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पहले तो हम मॉडल ही लेंगे जो मॉडल है यहाँ पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए और बी ऐड किया क्योंकि मॉडल वर्ब से शुरू हो रहे हैं. वर्ब का हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले लिया और सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लास्ट में लेकर जा रहे हैं बाय सब्जेक्ट करके. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. कैन ही डू दिस वर्क. ठीक है, तो कैन हो गया मॉडल, तो वो सबसे पहले आ गया. ठीक है, दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया दिस वर्क. ओके, फिर हमें क्या लेना है? बी लेना है ना. तो हमने यहाँ पे बी लिया और डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया डन और बाय सब्जेक्ट ही का हो गया हिम. तो कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम. ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वुड सिमरन लर्न इंग्लिश. तो क्या हो जाएगा? वुड इंग्लिश बी लर्नड बाय सिमरन. Would English be learned by Simran? Okay. Can she cook the food? ठीक है, तो द फूड ऑब्जेक्ट है वो आगे ले लेंगे, फिर हम बी ऐड करेंगे और वर्ब का हम ले लेंगे V3 फॉर्म और बाय सब्जेक्ट शी का हो जाएगा हर. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कैन द फूड बी कुक्ड बाय हर. ओके. Similarly, you can try out this statement also. Should Shubham write homework? तो क्या होगा? Should homework be written by Shubham? ठीक है, इसमें भी हम वही चेंजेस कर रहे हैं, हम सिर्फ ये स्ट्रक्चर ध्यान में रख रहे हैं. हम स्ट्रक्चर के हिसाब से सारे सेंटेंसेस अच्छे से चेंज कर सकते हैं. ओके. अब रूल 5 क्या कहता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई, व्हेन और हाउ से स्टार्ट होता है तो हम पैसिव वॉइस भी उसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बट अगर वो हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको बाय हुम से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो कोई भी WH क्वेश्चन है तो पैसिव वॉइस उसी WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, बट अगर WH क्वेश्चन में हु आ रहा है तो उसको हम बाय हुम से रिप्लेस कर देंगे. बाकी जो स्ट्रक्चर जैसा है वो वैसा ही रहेगा. ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है WH क्वेश्चंस के लिए? तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब दैट इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? तो सबसे पहले WH वर्ड जो है वो ऑक्सिलियरी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और सब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ लास्ट में बाय सब्जेक्ट. ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. When did you do this work? ठीक है, तो when did हो गया, तो did पास्ट टेंस में हो गया, तो पास्ट टेंस में हम was कर देंगे. क्यों? क्योंकि उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, दिस वर्क. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने इसको was कर दिया. ओके, फिर वर्ब है डू, उसका पास्ट पार्टिसिपल डन
और यू का यहाँ पे यू ही रहेगा। ठीक है, तो when was this work done by you, ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट when will they announce the result, तो when will वैसा का वैसा हम पहले रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, WH वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे यहाँ पे। ओके, और will आ रहा है तो will के साथ हम be यूज करते हैं, राइट, विथ will we use be, तो हम यहाँ पे be इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और announced by them। ठीक है, दे का हमने them कर दिया। ओके, बट आप देख सकते हो ये मैंने ब्रैकेट में रखा है, तो ये ऑप्शनल है, यू कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाई डिड शी पनिश यू। ठीक है, पनिश का क्या हो गया, प्लूरल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे यू है तो यू के साथ हम हमेशा वर यूज करते हैं, आर और वर यूज करते हैं इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यू है तो हम यहाँ पे वर ले रहे हैं, और सब्जेक्ट सॉरी वर्ब जो है पनिश, उसका हमने V3 फॉर्म कर दिया, पनिश्ड, और बाय हर, तो यहाँ पे शी है तो शी का हम क्या कर देंगे, हर कर देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रहा है, वाई वर यू पनिश्ड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, वाई हैव यू बॉट दिस टिकट। ओके, हैव यू के साथ हैव लगता है हमेशा। ठीक है, पर हमें यहाँ तो ऑब्जेक्ट लेकर आना है, यानी कि दिस टिकट, तो दिस टिकट के साथ हम हैज लगाते हैं, राइट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है या थिंग होता है उसके साथ हम हैज लगाते हैं। ओके, तो वाई हैज हो गया, दिस टिकट आगे आ गया। ओके, और हैव है, हैव के साथ हम बीन लगाते हैं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, और परफेक्ट में हम हमेशा बीन लगाते हैं। ओके, परफेक्ट है तो ये वर्ब का हम सेम पार्ट यूज करेंगे, उसको हमें कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड बाय यू का जो प्रोनाउन चेंज होता है वो यू ही रहता है। ठीक है, तो why has this ticket been bought by you? Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल, what did he say। ठीक है, did है तो did का was हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर ही है तो यहाँ पे भी said सिंगुलर ही आ रहा है, तो what was said by him, ही का हो गया him। ठीक है, say का थर्ड फॉर्म हो गया said। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, what did she buy, तो डिड का वॉस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाय सिंगुलर है तो वो बॉट हो जाएगा, और बाय हर, शी का हमने हर कर दिया, तो व्हाट वॉज बॉट बाय हर। ओके, दिस इज हाउ वी चेंज द WH words, but when WH words are starting with who, we change it, we replace it with by whom. Okay, for example, who has done this work। ठीक है, तो बाय whom हैज दिस वर्क बीन डन। ठीक है, दिस वर्क है, दिस वर्क के साथ हम हैज यूज करते हैं कोई भी चीज के साथ। ठीक है, और हैज और हैव आ रहा है तो हम उसमें बीन ऐड करते हैं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो रहा है, राइट, और डन का हम डन ही रखेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, हु रोट दिस बुक। ठीक है, हु रोट पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट टेंस में हम वॉस लगाते हैं। ओके, दिस बुक है तो वहां पे हम वॉस लगाएंगे सिंगुलर, तो बाय हुम वॉस दिस बुक रिटन। ठीक है, हु का हो जाता है बाय हुम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल कॉल हिम। ठीक है, अब हिम है यहाँ पे तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो ही में चेंज करेंगे। ओके, और विल है तो विल के साथ हम बी यूज करते हैं, राइट, और हु का हम बाय होम से रिप्लेस कर देते हैं।
तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बाय होम विल ही बी कॉल्ड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बाय सब्जेक्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बी वर्ब कर देते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हु पेंटेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, पेंटेड है, ओके, और ब्यूटीफुल पेंटिंग मतलब सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर में हम वॉस यूज करते हैं, ओके, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो ऐसा होगा, बाय होम वॉज दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग बीइंग पेंटेड। ठीक है, यहाँ पे हम बीइंग ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, राइट। ओके, this is painting and this is painted, this is the verb, right? So we are not using being form. By whom was this beautiful painting painted? Okay, this will be the correct answer. So we have one rule chart for you to remember what to use, how to use. ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वो डू या डस से स्टार्ट होगा, तो जब आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप इज एम आर यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट है और इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एम बीइंग, इज बीइंग या आर बीइंग लिखना है, क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी वाला वर्ब होगा। ओके, परफेक्ट है तो हैज और हैव होगा, तो हैज बीन और हैव बीन यूज करना है आपको। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और डिड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पैसिव में वॉस या वर से स्टार्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्ब एंड पर्सन। ठीक है, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगा वॉज या वर से, तो आपको वॉज बीइंग या तो वर बीइंग लेना है, क्योंकि अगेन कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब होगा, राइट। फिर परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, तो वो हैड से शुरू होगा, तो आपको लेना है हैड बीन, क्योंकि हम परफेक्ट में बीन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर सिंपल फ्यूचर है जैसे कि विल और शेल, तो हम विल बी और शेल बी यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कि कैन, मे, मस्ट, ठीक है, तो आपको कैन बी, मस्ट बी, मे बी ऐसे यूज करना होगा। ठीक है, तो कुछ चेंजेस जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं, कुछ नोट है जो हमें याद रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं जैसे कि डू, डज और डिड, वो कभी भी पैसिव फॉर्म में नहीं आएंगे। डू, डज और डिड की जगह पे क्या आएगा, इज एम आर आएगा, या डिड की जगह पे वॉस वर आएगा, तो कभी भी पैसिव वॉइस में डू, डज, डिड नहीं आएगा। ठीक है, और वर्ब्स जैसे कि हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये जो भी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में है तो वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही रहेगा जब वो पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है। ओके, सिमिलरली जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हेन, व्हाई, वर, हाउ और व्हाट, वो भी वैसे के वैसे स्टार्टिंग सेंटेंस में ही रहेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, और लास्ट नोट कि जो हु है सिर्फ उसको हम बाय होम में चेंज करते हैं, बाकी जो जैसा वर्ड है हम वही वर्ड पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ओके, तो this is one more example for simple tense, simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Okay, you can go through this chart, you can go through this example. All the things that we have learned in the video is summarized in this one slide. Okay, everything is covered over here. Does, is, has, did, was, had, or will be,
विल हैव। ठीक है, तो सारे जो हमारे रूल्स हैं, जितने भी हमने रूल्स अभी तक देखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो हम कब कैसे चेंज करते हैं, आप ये स्लाइड अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको रिफर कर सकते हैं। आप यहाँ पे पॉज लगा के आप ये एग्जाम्पल्स एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस खत्म होते हैं, और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट वीडियो में अपने लेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।